बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर। आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स अंडर फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to ask you, do you know about what is atmosphere? एटमॉस्फेयर क्या है? क्या है वायुमंडल? जब हम वायुमंडल शब्द सुनते हैं तो ये हमारे मन में ये होता है कि वायु मीन्स एयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ ऑल राउंड। इट इज द एनवेलप ऑफ एयर, that is a mixture of various gases which surrounds earth all round. This is called atmosphere. मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का, और इसको आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा तभी पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यू मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक। अब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मैं बोला कि एटमॉस्फेयर द एयर, यह एयर बहुत से गैसों का मिश्रण है। आप जानते हैं, you already know that our earth is known as unique planet. Why? Air is one that supports life. There could be no life without air in the atmosphere that provides us life-giving gases like oxygen, which is very important for humans and animals. Likewise, CO2, carbon dioxide gas, that is very important for plant species. Similarly, there are other gases like argon, krypton, neon, xenon, hydrogen, etc. I'd like to say you that there are permanent gases and there are some variable gases. Which are permanent gases? Nitrogen, oxygen, argon, krypton, neon, xenon. They are the permanent gases. Hydrogen also. And variable gases like CO2, carbon dioxide, water vapor, and ozone gas. They vary from time as per the changing time and place. Thus, some are permanent gases and some are variable gases. Atmosphere is very important. Just I taught you that atmosphere provides us oxygen, carbon dioxide gas, nitrogen, etc. Nitrogen accounts for 78.8%. 78.8% that is covered by nitrogen. 20.95% that is covered by oxygen. Argon 0.28%, carbon dioxide 0.03%, krypton 0.005%. Thus, 99% of the atmosphere covered by nitrogen and oxygen, and rest 1% is covered by other gases. Here. Now, I would like to see about the structure of atmosphere. Atmosphere that surrounds us all round, but a very important element of environment. You should know that there are 5 layers of atmosphere. 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, 4 इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लेयर, the lowermost layer of atmosphere, that is known as troposphere.
Second, just above troposphere, stratosphere. Third, mesosphere. Fourth, thermosphere, that is also known as ionosphere. And fifth, exosphere. Now I'd like to say about troposphere in detail. Troposphere is the lowest layer of atmosphere that is concerned with Earth. We are very much concerned with troposphere because it is the lowest layer of atmosphere. Here you should know that all weather and climatic changes take place in this layer. The height of troposphere varies from equator to poles. The average height of this layer is 13 km above the Earth's surface. Its height near the poles is 8 km, whereas its height near the equator is 18 km. Why there is great difference between the height between poles and equator in the height of troposphere? ट्रोपोस्फीयर इक्वेटर पर क्या है, गर्मी अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, तो गर्म एयर जो है, द हॉट एयर इज ट्रांसपोर्टेड बाय कन्वेक्शनल करेंट्स. यह कन्वेक्शनल करेंट्स जो उत्पन्न होती है अधिक गर्मी की चलती है, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया जो है बहुत गर्म हो जाता है. हवा जब गर्म होती है तो कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती है, और यही कन्वेक्शन करंट जो है यह गर्म हवा को ऊपर उड़ाती है, जिससे ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई इक्वेटर पर बढ़ जाती है. लेकिन पोल्स पे क्या है, नियर द पोल्स देयर इज लो टेम्परेचर. टेम्परेचर लो है इसलिए हवा सिकुड़ जाती है, एयर मोलिक्यूल्स फैलते नहीं है. इसलिए यहां पर जो एयर पार्टिकल्स है वे ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं. देयर इज वेरी लो टेम्परेचर नियर इक्वेटर, नियर पोल्स, बट एट द इक्वेटर, around the equator, there is very high temperature. So due to very high temperature, the height of troposphere is very more and more as compared to poles. अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं. Just I told you that all weather phenomena or climatic changes take place in troposphere. Here, the formation of clouds, precipitation, occurrence of evaporation, condensation, precipitation, all the process take place in this layer that form cloud, and at last we are also getting rainfall in this layer. Here, the very important point of this layer that temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter. प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है. अब यह प्रश्न उठता है कि टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं, यह हमें जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह जैसे एटमॉस्फेयर में है, इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, एंड ओपेक टू आउटगोइंग रेडिएशन. यहां पर पृथ्वी के निचले भाग में ट्रोपोस्फीयर का जो निचला पोर्शन है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चलते यहाँ पर गर्म रहता है. और आपको ये भी जानना चाहिए कि सूर्य की जो किरणें आती है, सोलर एनर्जी जो आती है इंसुलेशन के रूप में, यह ग्राउंड पर अधिक आती है. मोर एंड मोर पार्ट ऑफ इंसुलेशन रीचेज ऑन द ग्राउंड एंड आवर अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स. दिस इज कॉल्ड इंसुलेशन. तो हमारा ग्राउंड जो है अर्थ सरफेस से पूरा गर्म हो जाता है, और जब जिस एनर्जी को हमारी अर्थ रेडिएट करती है, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय अर्थ, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर. तो ट्रोपोस्फेयर का जो निचला जो पोर्शन है यह पृथ्वी द्वारा छोड़े हुए एनर्जी को जो रिलीज करती है, जिस एनर्जी को हमारी अर्थ पृथ्वी इसको निचला पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यह भाग गर्म रहता है. और ऊपर का भाग क्या है, चूंकि CO2 गैस जो है इसको दबाए रखती है, इसलिए यह यहाँ का जो नीचे का जो हीट है वह ऊपर रेडिएट जल्दी नहीं हो पाता है. और ऊपर द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर नॉट अफेक्टेड डायरेक्टली बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो
तो पृथ्वी द्वारा रिलीज किए हुए एनर्जी जो रेडिएट होती है अर्थ द्वारा, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन in the upper part of troposphere. That's why temperature is lower in the upper part and higher in the lower part of troposphere. This is the main characteristic of troposphere. Now the other layer of atmosphere is stratosphere. But the zone between troposphere and stratosphere is known as tropopause. अब यहाँ पर ट्रोपोपॉज जो है इसका टेम्परेचर, इसके बाद ट्रोपोपॉज वह एरिया है जहाँ पर सभी क्लाइमेट और वेदर फिनोमेना का हाईएस्ट भाग है. इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर वेयर ऑल क्लाइमेटिक एंड वेदर फिनोमेना change they take place. Beyond tropopause, now there is no change in atmospheric phenomena, weather phenomena. अब यहाँ पर ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर एक समान होता है, लेकिन ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर जस्ट एबव ट्रोपोपॉज देयर इज द अदर लेयर दैट इज नोन स्ट्रेटोस्फीयर. अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर, द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर देयर इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर कंस्टेंट होता है. ड्यू टू कंस्टेंट टेम्परेचर देयर इज वेरी गुड कंडीशन, very ideal condition for flying aircraft. हवाई जहाजें उड़ान जो भरती हैं, for flying aeroplane there is very good condition is developed due to the constant temperature and there is no up and down movement of air molecules. That's why very calm area, and due to very calm area, due to constant temperature, this condition develops the very ideal condition for aircraft. तो इस तरह से यह एरोप्लेन उड़ने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर का लोअर जो भाग है दैट इज जस्ट नियर द ट्रोपोपॉज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरोप्लेन. लेकिन ठीक इसके बाद जस्ट एबव 20 किलोमीटर, बिकॉज द एरिया ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम ट्रोपोपॉज अप टू 50 किलोमीटर, दिस इज द एरिया ऑफ stratosphere. But just after 20 kilometer, now temperature increases. यार अब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है? ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज इन द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज नोन एज ओजोन लेयर. दिस ओजोन लेयर, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ओजोन गैस दैट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटेड बाय सन. तो सन के द्वारा जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन गैस क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन लेयर. तो ओजोन गैस के चलते यहाँ पर एक ओजोन लेयर है और यह ओजोन लेयर बहुत गर्म हो जाती है क्योंकि देयर इज ए ग्रेट कैपेसिटी टू होल्ड सोलर रेडिएशन इन द ओजोन गैस एंड दैट मेक्स दिस लेयर वेरी हॉट. So here I try to say that temperature gradually increases in stratosphere after 20 kilometer. Here I want to say that this layer is very important for life. Why? Because ozone layer acts as shield for protecting all life forms on the earth. All human beings, animals and plants, all the life of all living beings are protected. It is protected by due to availability of ozone gas available in stratosphere. That's why this layer is very important for us. Just above stratosphere, the zone that is known as stratopause. Mesopause. अब यहाँ पर है स्ट्रेटोपॉज है. अब स्ट्रेटोपॉज के ऊपर क्या है, तो दूसरा लेयर स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज थर्ड लेयर, मेसोस्फीयर. अब यहाँ पर मेसोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज. द एरिया ऑफ मेसोस्फीयर इज 50 to 80 किलोमीटर. जस्ट एबव स्ट्रेटोपॉज द एरिया स्टार्ट्स एंड एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर, दैट इज नोन एज मेसोस्फीयर. द टेम्परेचर डिक्रीजेज क्योंकि यहाँ पर एयर मोलिक्यूल्स क्या एक्सपैंड हो जाती है एंड द एयर मोलिक्यूल्स अवेलेबल इन मेसोस्फीयर दे डू नॉट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन डायरेक्टली.
अब ये इसमें जो है एयर मोलिक्यूल्स है मेसोस्फीयर में, या सन के रेडिएशन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसके चलते ये ठंडा हो जाती है और टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है। तो हियर टेम्परेचर इज लो इन द लेयर ऑफ मेसोस्फीयर। नाउ जस्ट एबव मेसोस्फीयर द फोर्थ लेयर इज नोन एज थर्मोस्फीयर। अब यहाँ पर टेम्परेचर हाई है ही। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि दिस लेयर कंटेन्स आयंस। The ions are electrical charged particles. The radio waves transmitted from Earth's surface, they are reflected again by the ions back to Earth. That makes possible the radio transmission. The radio waves are reflected by ions back to the Earth's surface. तो इस तरह से जो हम रेडियो में आवाज सुनते हैं, वी लिसन द साउंड्स इन ट्रांजिस्टर रेडियो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस विच आर अवेलेबल इन थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड आफ्टर आयनोस्फीयर एंड द एरिया ऑफ आयनोस्फीयर 80 किलोमीटर to 400 किलोमीटर. After 400 kilometer, the uppermost layer starts, that is known as exosphere. Now no much idea has been absorbed about this layer. इस तरह से ये 5 लेयर है. There are 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. They are very important layers of atmosphere. Thank you, my dear.